السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ ریس کورس پولیس نے چنگیا مرصدو سے 14 سالہ طلبہ کو بازیاب کروا لیا۔ ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گرفتار کیا گیا، جو 3 روز قبل طلبہ کو ورغلا کر کرائے کے کوارٹر لے گیا تھا۔ والدین کی شکایت پر مقدمہ درج، تفتیش جاری ہے۔ ایس پی سول لائنز چودھری اسر علی نے والدین سے بچوں کی نگرانی کی ہدایت کی ہے۔ ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر فیکٹری ایریا پولیس ٹیم نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے احمد رضا سے 1.5 کلو چرس، پسٹل اور گولیاں اور عمران مسیح سے 11 کلو بھانگ برآمد کر لی۔ ملزمان نے تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ مقدمہ درج، مزید تفتیش اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی صدارت میں بورڈ آف ریونیو کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اراضی فراڈ اور جعلی ہاؤسنگ سکیمز کے خلاف سخت کارروائی کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اراضی کے ریکارڈ، ملکیتی حقوق اور ریگولیٹری فریم ورک پر تبادلہ خیال ہوا اور لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور پھاٹا کے زیر انتظام اراضی کی مانیٹرنگ کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دینے کی سفارش کی گئی۔ وزیر ہاؤسنگ نے کہا کہ فائلز اور پلاٹ سکیمز کے ذریعے عوام سے دھوکہ کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور شفافیت اور عوام کے حقوق کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ اوکاڑہ پولیس نے ڈی پی او راشد ہدایت کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، جس میں ایس ایچ اوز کی زیر نگرانی سخت ناکہ بندی کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران 1 وے کی خلاف ورزی، بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیونگ کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ اور ڈی پی او فراز احمد کی زیر صدارت پنجاب میں تحفظ غیر منقولہ آرڈیننس 2025 کے نفاذ سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں 11 کیسز کی سماعت کی گئی۔ کمیٹی نے 2 غیر حاضر فریقین کی جائیداد سرکاری تحویل میں لے لی۔ 3 کیسز کو ناقابل سماعت قرار دے کر داخل دفتر کیا گیا، جبکہ دیگر کیسز پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام کو آرڈیننس کے بارے میں آگاہی دینے اور قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ بھونگ کے نواحی علاقے بستی جان محمد میں پولیس نے وہ کر دکھایا جو 60 برس میں کوئی بھی نہ کر سکا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے نمائندے کرم علی۔ جی کرم علی، بتائیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں بھونگ کے نواحی علاقے بستی جان محمد میں۔ عبدالحق کا والدہ کا جو زمین تھا قبضہ گروپ کے پاس تھا، کل ان کو قبضہ ملا ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبدالحق بھائی، آپ کو قبضہ مل گیا؟ جی الحمدللہ قبضہ مل گیا اور اللہ کا شکر ہے۔ 50 سے 60 سال پرانا یہ معاملہ تھا اور قبضہ کیا ہوا تھا زمین کے اوپر۔ تو آج نفری آیا، تقریباً 5-6 دالوں پر مشتمل تھا، تو وہاں پہ بہت بڑا بھیڑ جمع ہو گیا۔ جب قبضہ آپ کو پولیس نے دلوا کر دیا جی اسی ٹائم؟ جی اسی ٹائم سینکڑوں کے تعداد میں مرد اور خواتین موجود تھے۔ جی بڑا دھکم پھیل ہوا اور یعنی کہ مکوں کا بھی استعمال کیا گیا، تو کافی تھریٹس بھی تھے اور بہرحال ان کے باوجود بھی محکمہ کامیاب ہوا اور انہوں نے قبضہ کروا کے دے دیے۔ عبدالحق بھائی، یہ جو مریم نواز صاحبہ کا اچھا قدم ہے، اچھا اقدام ہے، لیکن یہ قانون جو پاس کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے، یہ کیسے لگتا ہے آپ کو؟ اچھا کام ہے؟ جی الحمدللہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عمدہ قانون ہے۔ میں ایزا پورا یہاں پہ علاقہ ہی جانتا ہے کہ پی ایم لینڈ سے وابستگی ہے میرا اور انہی کا ہی سپورٹ اور ووٹ ہے۔ تو یہ اقدام اور یہ قانون ایک غریب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی کہ میں ان کی الفاظ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ غریب کے لیے کتنا یہ قانون اہم ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ قانون سے پہلے آپ کتنے عدالت کے چکر لگا چکے ہیں؟ قانون سے پہلے تو ہزاروں مرتبہ، میں تو سمجھ سے بہر ہے کہ کتنے
गिनती में नहीं आ रहे कि मेरे ख्याल में लाखों की तादाद होगा, 70 साल से लगे हुए थे। लेकिन जो ज़मीन है मेरे अंदाजे में उसके 50% उसके ऊपर लग गए होंगे पैसे, जो जितने आपने अदालत के चक्कर लगाए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 50% से ज़्यादा जितनी ज़मीन की कीमत है उन 50% ज़्यादा उसके ऊपर ना ये अखराजात आ चुके हैं और ख़र्चा हो चुका है। बहरहाल फिर भी अल्लाह का शुक्र है मरियम साहबा की और PMLN की ये जो इक़दाम है इसकी हम तारीफ़ करते हैं और इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी, ये थे अब्दुल हक भाई। इनका कहना है कि मरियम नवाज़ साहिबा का जो ये कानून पास किया है, बेहतरीन कानून है, इससे गरीब को जो है ना कानून का सहारा मिल गया। गरीब से जो काफ़ी ताकतवर लोग थे उनका ज़मीन छीना हुआ था काफ़ी सालों से। इनका भी कहना है कि 60 साल से जो हमारा ज़मीन था जो कब्ज़ा ग्रुप के पास था, लेकिन अभी जो कानून पास हुआ है मरियम नवाज़ साहिबा की, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे धमकियाँ मिल रहे हैं, लेकिन अभी इनको जो है ज़मीन का कब्ज़ा मिल गया। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा को हमारी तरफ से भी सलाम है कि उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया है गरीब के लिए। बहुत शुक्रिया, करम अली हमें अपडेट कर रहे थे। नीना सोहावा में डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद इमरान असलम की हिदायत पर ETO जहलम मुनव्वर हुसैन की निगरानी में खुसूसी टीम ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की, जिसमें मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स और होल सेल डीलर्स पर छापे मारकर लाखों रुपए मालियत की स्मगल शुदा और नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स जब्त की गई। महकमा एक्साइज ने बताया कि स्मगल सिगरेट्स से कौमी खजाने को अरबों का नुकसान होता है और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। सुयासल लाहौर में लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे हमारे रिपोर्टर अल्लाह वसाए। जी अल्लाह वसाए, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है लाहौर का इलाका सुयासल आरम मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल। जैसा कि आपको पता, हर साल की तरह इस साल भी स्मोक ने लाहौर में अपने डेरे डालिए। लाहौर जो है कि पहले नंबर पे आता है स्मोक के वाले से। इस वक्त हमारे साथ मेडिकल डॉक्टर बाबर भट्टू साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे शहरियों को इस स्मोक के वाले शहरों जो बीमारियां होती है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर। थैंक यू जी। पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। स्मोक एक माहौलियाती आलूदगी नहीं बल्कि एक हेल्थ एमरजेंसी है। स्मोक एक मजमूआ है, पहले तो हम समझें स्मोक क्या। स्मोक एक गैसेस का और मुख्तलिफ ख़तरनाक पार्टिकल्स का मजमूआ होता है जिसके मुज़र असरात इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। बुजुर्ग, बच्चे और वो लोग जो ज़्यादा बीमार हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा या फेफड़ों के मुख्तलिफ मसाइल हैं, ये स्मोक का ज़्यादा शिकार होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक साल में लाहौर शहर में 1248 अमवात हुई हैं स्मोक की वजह से। दमा और फेफड़ों के बीमारियों के शिकार लोग इसका सबसे बड़ा शिकार हैं और वो उनका इस बीमारियों का बर्डन जो है 100% ज़्यादा हो जाता है। किसी को दमा भी शुरू हुआ है और स्मोक में वो 100% तक उसकी अलामात बढ़ सकती हैं। आरफ मेमोरियल टीचिंग अस्पताल जैसा कि इर्द गिर्द सारे देहात हैं, तो यहाँ लोगों को अपने रोज़गार के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, खेतों में काम करना या फैक्ट्रियों में जाना, तो वो इसकी बीमारी स्मोक की वजह से या इसके मसाइल का ज़्यादा शिकार हो सकता है। आरफ मेमोरियल अस्पताल इन बढ़ते मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने सांस के मसाइल के इलाज मुआवजा की जो सहूलियात हैं वो ज़्यादा कर दी हैं, बढ़ा दी हैं, और अपनी कम्युनिटी में स्मोक की वजह से जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि स्मोक और इसके मुज़र असरात के, हम बाहर निकल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी इर्द गिर्द के देहात में कर रहे हैं। आखिर में कहता चलूँ, स्मोक से बचना कैसे है। स्मोक से बचाव सिर्फ एहतियात से हो सकता है। कम से कम अपने घर से निकलें बवक्त ज़रूरत। बहुत मजबूरी है, ज़रूरत है, बिल्कुल जाना है जाएं, लेकिन उस सूरत हाल में आप जो फेस मास्क हैं, हम कोविड की वजह से फेस मास्क से तो हम काफ़ी ज़्यादा मुतारफ़ हो चुके हैं, उसको पहनना अपना मामूल बना लें और अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो बंद रखें ताकि स्मोक कम से कम अंदर एंटर हो। पानी ज़्यादा पिएं और अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई मेडिकल इशू स्मोक की वजह से सांस की तकलीफ़ या इस तरह के कोई मसाइल होते हैं तो वो फ़ौरन किसी और जगह जाने के बजाय अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास विज़िट करें और उसको अपने मसाइल बताएं ताकि उसका प्रॉपर हल हो सके। अच्छा, दूसरा बाबर साहब में बताइए, जो कि आपको पता है ज़्यादा ये देहाती इलाका है जहाँ पर
कि हर जगह पर, हर चौराहे पर डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनको किसी चीज़ का पता नहीं। क्या जो स्मोक के हवाले से बीमार शहरी उनको उनके पास जाना चाहिए कि नहीं? मैं जी गुजारिश करता चलूँ, वो जो जिनका आपने जिक्र किया वो क्वैक्स हैं, वो ना तो मुस्लिम डॉक्टर हैं ना ही मुस्लिम डिस्पेंसर हैं, तो उनके पास जाने से जितना इज्तनाब हो सके उतना करना चाहिए। उनको ना तो बीमारी का पता है, ना उसके आगे जो असबाब हैं जिससे हम कम कर सकते हैं बीमारी का लोड, उसका पता नहीं। वो कि और ट्रीटमेंट या और मसाइल को बढ़ाने का तो ज़रिया हो सकते हैं, मसला कम करने का कभी भी ज़रिया नहीं बने ऐसे लोग। अच्छा बाबर साहब, दूसरा में बताइएगा क्यार मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल की तरफ से गाय मैसी कोई वाम के लिए दिया जा रहा है कि नहीं स्मोक के हवाले से? जी, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हम मुख्तलिफ देहात में हमने अब तक 809 कैंप्स कर लिए हैं, और जिसमें हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं ये जाके ना सिर्फ मुआयना कर रहे हैं मरीज़ों का, उनकी जो फेफड़े की बीमारियां हैं या जो बाकी बीमारियां हैं उन सब का मुआयना करें, साथ साथ उनको बताते जा रहे हैं। हमने अपने स्मोक के ब्रोशर, स्मोक की स्टैंडीज़, बैनर्स ये तक बना के लगाए हुए हैं ताकि लोगों में ये जो हम इसको कहते हैं कि उनको हेल्थ एजुकेट करें, कि उनकी तालीम हो उनके सेहत के लिए, तो वो हम कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह वसाए हमें अपडेट कर रहे थे। मंडी उस्मान वाला थाना ने पंजाब हुकूमत के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। नए कवानीन के मुताबिक बगैर या मनसूख शुदा लाइसेंस, कम उम्र ड्राइवर, जायद मुसाफिर, काले शीशे, गलत लाइट्स और टेम्पर्ड गाड़ियों पर 6 माह से 2 साल तक कैद या जुर्माने की सज़ा होगी। SHO आसिफ भट्टी ने शहरियों से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। मिंशनाबाद में खुश्क मेवा जात की कीमतों में कमी होने के बाद भी सफ़ेद पोश और दिहाड़ीदार अफराद इसकी पहुंच से दूर हो गए हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल बताइएगा। इस बार जो खुशक मेवा जात है इनके रेटों में कमी हुई है, इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत कमी हुई है। जो 16,000 वाला तरगोदा था वो 6,000 हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें कमी हुई है। ये हमारे मिंशनाबाद में चमन ड्राई फ्रूट वाली दुकान है, इसमें बेहतरीन और चीज़ अच्छी म्यारी चीज़ बाज़ार से बारात खरीद मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर पिछले साल निस्बत इस साल बहुत रेट कम है ड्राई फ्रूट के। जैसा कि आप इस कस्टमर हजरात की बात सुन रहे थे, मेरे साथ एक और कस्टमर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? खुशक मेवा जात सेहत के लिए ज़िंदगी, कहा जाता है सेहत है तो ज़िंदगी है, खरीदने के लिए आए हैं, रेटों के हवाले से क्या कहेंगे और हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देंगे? देखें जी, पिछले साल की निस्बत सिर्फ खुशक मेवा जात की गल करिए तो थोड़े बहुते को रेट कम होए ने, लेकिन ओवरऑल जी महंगाई है ना उन्हें आवाम का जीना बिल्कुल मुहाल कर दिता है। गरीब आवाम जी है, जो मुतवसत तबका है, वो तो हुण भी जो खुशक मेवा जात नहीं खरीद सकता, आपके बच्चों नहीं खिला सकता, क्योंकि उन्हों का दिहाड़ीदार जो तबका है उस पर डे के हिसाब से 1,000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला बंदा उन्होंने खुशक मेवा जात खरीदते देगा, चीनी लवेगा, घी लवेगा, पत्ती लवेगा या आटा खरीदेगा। सब्जियां का रेट ज्यादा ने, फ्रूट का रेट ज्यादा है, अपना आटे का रेट ज्यादा है, चीनी का रेट ज्यादा है, घी का रेट ज्यादा है, तो खुशक मेवा जात अगर कम हो भी गया तो की करिए, वो तो पहले भी नहीं खरीद सकते सी। जैसा कि आप कस्टमर हजरात की बात सुन रहे थे, सफ़ेद पोश और जो दिहाड़ीदार तबका है वो अपने बच्चों को खुशक मेवा जात खिलाना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, इस बार हुकूमत ने इस पर टैक्स कम किए हैं, ज़्यादा किए हैं, रेटों में इजाफे हैं, कमी हुई, क्या कहेंगे? पिछले साल से जी कम रेट हुए हैं, बहुत चीज़ों का कम रेट हुए हैं। चलगोदा जो 14,000 था वो 6,000 रुपये, खरोट जो 1200 से वो 800 रुपये किलो है अच्छे कागजी, बादाम गिरी जो 3600 थी वो 250 रुपये, और खजूर रानी 450 रुपये। पिछले साल से बहुत चीज़ें कम हुई हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, आपके काम में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? ज़्यादातर कौन लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल का जो आपको करा के जाते हैं, क्या खरीद के लेके जाते हैं? पिछले साल से ना काम अच्छा ज़्यादा है, जो अच्छे लोग हैं ना अमीर जो वो ले जाते हैं 2-2 किलो, जो गरीब आदमी है वो खजूर ले जाता है, मूंगफली ले जाता है, नींबू ले जाता है, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं। जैसा कि आप कस्टमर हजरात की भी बात सुन रहे थे, दुकानदारों की भी बात सुन रहे थे,
दुकानदार का कहना है कि पिछले साल की निस्बत खुशक मेवा जात में इस बार कमी हुई है, लेकिन जो दिहाड़ीदार और सफ़ेद पोश लोग हैं वो बेचारे तो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल पूरी करते हैं, तो ये खुशक मेवा जात कहाँ से पूरा करें। हुकूमत वक्त को चाहिए है कि दिहाड़ीदार तबका की जो दिहाड़ी में इजाफा करे ताकि वो भी अपने बच्चों को ये खुशक मेवा जात खिलाकर उनकी सेहत में इजाफा कर सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी, मिंचनाबाद। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद इस्माइल, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पुलिस लाइन्स कॉम्प्लेक्स में CPO साहबजादा बिलाल उमर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SSP पेट्रोलिंग, CTO सर्कल, DSPs और SHOs ने शिरकत की। इजलास में शहर में बढ़ते ट्रैफिक मसाइल, हादसात और तजावुज़ात के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली बनाने, ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की निगरानी सख्त करने और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाने के इक़दामात पर गौर किया गया। CPO ने अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह करार दिया है। चौक सरवर शहीद में एक शख्स ने खुदसूजी करके जान दे दी। पुलिस ने वाक़े की महरकात मालूम करने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। अहले इलाका ने अफसोस का इजहार किया। रेस्क्यू टीम ने लाश THQ हस्पताल मुंतकिल कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। समुद्री में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नए अहकामात के तहत ट्रैफिक पुलिस शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर नाके लगाकर ओवर स्पीडिंग, वन व्हीलिंग, वन वे, बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शहरियों से पुलिस के साथ ताउन करने की अपील भी की गई है। जैकबाबाद के थाना सिविल लाइन के इलाके में नामालूम चोर सद्दाम हुसैन लाशारी के घर में दाखिल होकर 5 तोले तलाई जेवरात और 3 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने जय वक़ुआ पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। जैकबाबाद में कराची की रिहायशी लड़की आसिया ने सदर थाने में पनाह लेकर इल्ज़ाम आयद किया कि वालिद जुल्फ़िकार पंजाबी ने इसे जैकबाबाद के गोट कंडू जतोई में 6 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश की है। लड़की ने पुलिस से मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है और कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहती। उबाड़ू खमड़ा के करीब वरियाम खान कोश में पुलिस कार्रवाई के दौरान घर के सरबरा अब्दुल वाहिद कोश के अहले खाना से 2 बच्चियों समेत 4 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 मोटरसाइकिलें, 12 मवेशी और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। अब्दुल वाहिद ने इल्ज़ाम लगाया कि कार्रवाई कश्मीर के रिश्तेदारों की बुनियाद पर की गई है। इंसाफ और गिरफ्तारियों की रिहाई के लिए मुतलका हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा भी किया है, जबकि मकामी लोगों ने भी शफाफ तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। तरी माण्हू ॾियां सोधे मां वते न त FIR कंदो आहियां, हे कंदो आहियां, ॿुधे माल बंदी वियो आहे, ॿार असांजा खणी वियो आहे, सम्झे। लेडीज़ पुलिस बि न आहे, असांजे ॿारनि सां न थाणे ते लेडीज़ बि न आहे, थाणे ते लेडीज़ बि कोन्हे, ॿुधे। उते असांखे चवां त असांजा ॿार जेके घणा ॾींहं थिया आहिनि तव्हांजा ॿार ॿधा पिया? 25 तारीख़ ते खणी आया आहिनि। अञा 25 तारीख़ खां पुलिस वटि आहिनि, पुलिस वटि ॿार आहिनि, असांखे वरी मञीदा बि न आहिनि। अच्छा, सम्झी, मञीदा बि न आहिनि। तव्हांजो छा मसलो आहे? तव्हांजो नालो छा, केरु थींदा ऐं किथां ॻोठ, तव्हांजे ॻोठ जो छा नालो? वरियाम खान जो ॻोठ वेठा आहियूं असां, कोश हूं पाण, ॿुधे। मिट्रियूं तुंहिंजो नालो? अब्दुल वाहिद। छा मसलो आहे तव्हांजो? असांजो ईअं मसलो ईअं अॼु मिट्री कईसीं क्वेश्चन सां, सम्झी। उहे रहंदा आहिनि कश्मीर कच्चे में, असां वेठा आहियूं पके ते। असांखे बार बार पुलिस तंग कयो आहे। पहिरियों ई असांखे बंदी आहे, असां चटी भरे ताउन भरे छुटी आया आहियूं। कहिड़ी पुलिस? कोट सफदर जी, ॿुधे। वेदर वरी असांजी खंभड़नि जी पुलिस जो आई आहे, असांजा बाल बच्चा सभु माना खणी वई आहे, सम्झे। असांजो घर बि केरे विया हो तव्हां ॾिसी सघंदा हो। साईं चवां त असांजा 12 पारूं बकरियुनि जा बि काहे विया, ॿार ॾिठा आहिनि, माना 12 पारूं असांजा मां काहे वई आहे। ढेरकी से 3.5 साल कबल लापता सायरा सोमरू को मीरपुर माथेलो की अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अगवा की तरदीद करते हुए बताया कि वालिद के तशद्दुद से बचने के लिए घर से फरार हुई और अपनी मर्जी से शादी भी की, जिससे उनका एक बेटा भी है। अदालत ने बयान कलम बंद करके सायरा को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मुकदमे में नामजद पीर भर चुंडी के वकील ने सियासी इंतकाम के इल्ज़ामात आयद करते हुए इंसाफ की अपील की है।
खैरपुर मीरस में डिप्टी कमिश्नर फयाज हुसैन ने कैडेट कॉलेज में तकरीरी मुकाबले में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहाँ तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पुरजोश तकारीर की। डिप्टी कमिश्नर ने कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए और कहा कि ऐसे मुकाबले नौजवानों में खुद एतमादी और मस्बत सोच को फ़रोग़ देते हैं। नौशहरा फेरोज़ में गुलाम अब्बास मरी ने अपने बेटे अशरफ मरी से हमेशा के लिए लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुल्तान के अफराद ने उन्हें ब्लैकमेल करके रकम का तकाजा कर रहे हैं। गुलाम अब्बास ने कहा कि वो गरीब मजदूर हैं और अशरफ मरी के माली मामलात का ज़िम्मा नहीं उठा सकते। साथ ही SSP नौशहरा फेरोज़ से ब्लैकमेलिंग रोकने और अपना बयान रिकॉर्ड कराने की अपील भी की है। मुझे नालो गुलाम अब्बास मरी आ जंहिंमें मुंहिंजो पुटु आहे अशरफ अली मरी। किथां जाओ तव्हां? असां अमीर बश्क मरी जे ॻोठ जा जी। त हुन जी ॾेती लेती पंहिंजी आहे, मूंसां को बि हुन सां वास्तो मुंहिंजो न आहे। कंहिंसां? अशरफ सां। हुन जो वहिंवार पंहिंजो आहे, ॾेती लेती पंहिंजी आहे। मूंखे हींअर परेशान था कनि त असांजे हुन ॾे पैसा आहिनि ऐं इहे पैसा तूं भरे ॾे। मूंसां हुनजो को तालुक़ात ई न आहे त मां पैसा किनो भरे ॾियां। मूंखे परेशान कनि था, जेॾी फ़ोन था कनि त हिन ॾे असांजे अशरफ ॾे पैसा आहिनि। केरु था कनि परेशान? पंजाबी आहे हिकिड़ो, पंजाब जो। मुंहिंजो वास्तो ई कोन्हे त न मूंसां दुआ न सलाम। मूंखे तमामु परेशान कनि तव्हांखे बाबा? हा, मूंखे जेॾी महिल फ़ोन थो करे त पैसा ॾे, न त मुंहिंजे बस जा पैसा आहिनि मुंहिंजा। बस जा पैसा आहिनि, तो मूंखे गाॾी ॾिनी हुजे मां तोखे पैसा भरे ॾियां। जेॾी महिल धमकी ॾे मां नौशहर थाणे ते अची DSP खां तोखे घर ते छापा हणाए तव्हांखे ॿधाईंदुसि। मूंखे तमामु तंग कयो आहे, इन करे मुंहिंजो हुन सां को तालुक़ात न आहे। किथे बि आहे, छा बि आहे, पंहिंजो ॿधाईंदुसि, छा बि कंदुसि, मुंहिंजो को बि वास्तो हुन सां न आहे। सेवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 2 रोज़ दौरे पर सेवन पहुँच गए, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर ताज़ियतें पेश की और प्रेस क्लब भान सैयद आबाद का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने अवामी मुलाकातें भी की और हल्के के अवाम से मुलाकात के बाद वापसी की तैयारी भी की। मेहराबपुर में पाकिस्तान प्रेस क्लब में आसित मल्ला और उनकी बेटी अलीशा मल्ला ने वालिद के जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज किया और अदालत से दरख्वास्त की कि अलीशा को वालिदा से अलग न किया जाए। उन्होंने अपनी मुश्किलात और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत को अवाम के सामने पेश किया। अमा केर आयो, किथां जायो, छा मसलो हितां दा? अबा असां मीरपुर आहियूं, वेठल वॾेरो आकल गांगरो उन जे ॻोठ में वेठल आहियूं। ऐं त मुंहिंजो मुड़ुसु उन खां अॻु 15 साल मूंखे तलाक ॾेई चुको आहे, जंहिं मां हीअ नंढड़ी मूंखे पैदाश आहे। ऐं उन खां बाद में नंढड़ी मां 3 चकर हिन खे ॾेई चुकी आहियां। पोइ बि मां चवां पई त मुंहिंजो मुड़ुसु आहे, भली उन वटि रहे। मुंहिंजी नंढड़ी मूं वटि 4थों चकर हाणे वापसि आई आहे। हाणे मुंहिंजी नंढड़ी चवे थी त मां पंहिंजे अमड़ सां रहणु चाहींदसि। हाणे तव्हां आला अमलदारनि खां कहिड़ी घुर था कयो? हाणे मां इहा थी घुरां त हे जेको मां पंहिंजो बयानु कयां थी, हिन जो मूंखे बयानु पंहिंजो मथे मुंहिंजो रखियो वञे। तंहिं लंदे सुभाणे खां पोइ मां औरत आहियां, जो मां हर हिकु वॾेरे ॾे वई आहियां, मुंहिंजी का अदालत नथी थिए। पोइ मां चवां थी त मां ग़रीब औरत मज़लूम आहियां, पोइ मुंहिंजी दाह अलाह खे आहे। नौशहरा फेरोज़ में TCF स्कूल में समाजी और सियासी रहनुमा महानूर शेख की सरबराही में स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तकरीबन 30 तलबा और तलबात में स्कूल जूते तकसीम किए गए। तकरीब में मोहम्मद आदिल अब्बासी और रियाज मेहर भी शरीक हुए। महानूर शेख ने कहा कि आइंदा भी तलबा की ज़रूरियात और हौसला अफजाई के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। नौशहरा फेरोज़ मोरू में नौजवान पिस्टल साफ करते हुए अचानक गोली लगने से जा बहक हो गया। जख्मी को इब्तदा में मकामी हस्पताल नवान जतोई मुंतकिल किया गया। बाद अज़ा डॉक्टरी सहूलत न होने पर सिविल हस्पताल मोरू लाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। पुलिस को इतला दी गई और लाश हस्पताल में मौजूद है। टंडू मोहम्मद खान में बुलड़ी शाह करीम के करीब शिकार के तनाज़े पर नौजवान हुसैन मल्ला गोली लगने से कत्ल हुआ। लवाकिन ने कपूर बाईपास पर लाश रखकर ट्रैफिक बंद कर दी। मुजाहिरीन ने कातिल की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की दरख्वास्त की है, जबकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।